एग्जाम का रिजल्ट आया एंड आई वाज डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम आल्सो. I still remember the night. I cried a lot. Most of the successful things that happen does not have plan B also. So they know that this is the only way you have to. वहाँ पे रैंकिंग ऐसी होती थी. फर्स्ट रैंकर इज द आपका जेई के रैंकिंग के बेसिस पे होती थी. जो उसने पहला सीट लिया तो दैट वाज कॉल्ड खोलू क्योंकि उसने ब्रांच को ओपन किया है. एंड द लास्ट पर्सन इज यूज्ड टू कॉल ढक्कन क्योंकि वो लास्ट पर्सन है जिससे ब्रांच बंद हो गई है उसके अंदर. तो आई वाज ढक्कन ऑफ कंप्यूटर साइंस. Hey everyone, welcome to the Not So Famous podcast where we are bringing a new story of a dear friend Atul, who is a lead software engineer with Google. He has experience working with several great companies like Adobe, Zeta, ClearTax, and even had his own startup. Our theme is going to be the same, humble beginnings, stumbled starts, but still people who have made it big in their careers. So welcome Atul to our podcast. Without a further ado, let's start. So Atul, tell us, how does your story start? How does your not so famous story start? Take us through your childhood, how you ended up in your higher studies, and then we'll further go deep into some traits that shaped you as a person that you are today. So I was born and brought up basically in a town called Sri Ganganagar in Rajasthan. So I was there for my start till my 12th year also. So one of the things which stood out for me initially was that my father was in service, in government service also, which means that I have to find my own path of doing whatever I wanted to do also. So there was no backup plan as of now. Legacy, so, legacy or any business basically which I can stand. Another thing which happened in my childhood was I got my first computer basically when I was in, I believe in maybe 5th class or so basically. Okay. So that computer still stands with me. We still have that computer in my home. It's a 1.6 gigahertz Celeron processor, 16 MB RAM and 4.3 gigahertz hard disk also. चलता है अभी भी वो या उसको? अभी भी चलता है. तो उसमें सबसे अच्छा पार्ट क्या था कि Windows 95 used to work really great basically. उसके अंदर तो I still remember कि I have formatted that Windows so many times by doing random stuff on that part. So, but 5th में कंप्यूटर क्या करते थे मतलब back then like? So पापा का तो पापा अकाउंट्स में है basically. So तो पापा was looking into getting more work basically also. And this was, so that's why I know about accounting softwares from the beginning. So I worked on software called Tally. So I worked on the version which maybe nobody would have heard about, 4.5. So 4.5 was a DOS version basically, which does not need Windows to run also. And then 5.3 and other versions also basically. There was another software called Busy. Busy. Yeah, these are the only two. These are the two software. हाँ, तो वो ही उन softwares पे तो मैंने काफी entries की हुई है into software. तो that so these are few of the background stories basically. So that helped me into choosing some of the companies also. Got it. In my future. So मतलब 5th class में you were playing around with accounting software, I guess, like, or you were already starting to code, learning in school and implementing. So how did your romance start with computers? So 5th class में I don't think कि मैंने 5th class में मैंने कुछ भी किया होगा basically. So you used to play with screensavers. You play with. There was a game called Dave. There was a game called Prince. So played games and everything. Gradually, I started helping my father. उस पापा के work में also. And वो programming I don't recall when I started doing programming. Frankly, you start basics से start किया था. There was a language called Basics, QBasic also, and तो उसके around वहाँ कभी start हुआ होगा also, but there's no even
I did not study computer even in my 11th and 12th. Also. Oh, okay. So the first thing I studied computers officially was from the in the college itself also. Okay. School में you would have subjects as a computer in your elementary and secondary school, but Yeah. nothing major. जहाँ पे वो सिर्फ वही बताते हैं, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस होता है, आउटपुट डिवाइस ये होता है, वर्ड सिखा देते हैं कि आपको पेज इंसर्ट कर लो, you can do those things also basically. Yes. Okay, So, yeah. okay, cool. So schooling was in a middle class background in Rajasthan. Yes. वहाँ से हायर स्टडीज तक लेके जाओ, how did that happen? कैसे डिसाइड किया क्या करना है? वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा था? किसी ने हेल्प करी, किसी ने इंस्पायर किया? So decision making उस टाइम पे सिंपल नहीं थी. दिस इज मोर लाइक, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड के अंदर आई वॉज द बिगेस्ट चाइल्ड बेसिकली इन माई फादर फैमिली, हाँ. इन माई मदर फैमिली ऑल्सो. और ये सबसे मुश्किल होता है, राइट? सबसे बड़े होना, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली कोई बड़े भैया नहीं है जो बड़े बता भैया दे कि ये जिससे, कर लो. हाँ, जिससे बात करके यू कैन फाइंड आउट. तो तुम ही बड़े भैया थे तो. हाँ, तो एक चीज थोड़ी सी उस टाइम पे थोड़ा सा ट्रेंड था टू गेट इनटू मेडिकल और नॉन मेडिकल आल्सो, टू टेक बेसिकली साइंस एज अ सब्जेक्ट. करेक्ट. तो बेसिकली उस टाइम पे प्रेफरेंस रहती थी साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, हाँ. इसी ऑर्डर में, हाँ. एटलीस्ट इन द एरिया दैट आई वाज ब्रोन. हाँ. सो वो पूरा इंडिया का ऐसा ही था, सेम सीन कोई था. फर्क नहीं है कहीं पे भी. तो फिर वहां पे उस साइंस में अब वाज टोटली कंफ्यूज कि क्या करना है. अच्छा. लेकिन अब साइंस है तो साइंस तो लेना ही है. हाँ. एंड एक छोटी जगह का एक बेनिफिट ये था कि आप स्कूल में आप टॉपर रहते थे हाँ. बेसिकली. तो यू हैव ए स्मॉल स्कूल. आई हैड आई थिंक 30 के अराउंड का स्ट्रेंथ होगा हमारे क्लास का. देयर वाज नो सेक्शन और सो यू वर in an isolated world also, हाँ. and you feel that you are the only guy. Yeah. The school, जो स्कूल सबसे घर के पास में था, so that you can walk and go. So तो आई वहां पे हम स्टार्ट किया, एंड दिस वो स्कूल सही लगा, एंड वी वेंट टिल 10th also. 11th शायद वहां से करते, लेकिन उस टाइम पे 11th थी नहीं स्कूल में also. तो आई चेंज स्कूल. आई वेंट इनटू a school called Guru Harkishan Public School also, which was very expensive at that time also. And I was confused, so I took both. So in science you had two choices, either you go non-medical route or go you medical route. दोनों ले लिए उसके अंदर कि ठीक है. तो स्कूल वाज रेडी टू ऑफर कि आप बायोलॉजी प्लस मैथ्स एज ए ऑप्शन सब्जेक्ट ले लो also. And तो we started. So I started with both the options also. Gradually what happened was कि सबसे पहले biology में I studied genetics, which was an interesting subject, interesting area in biology also. तो वो सही लग रहा था. Then the second part जो आया वो था plant classification also, which is more like आपको you have to learn the scientific names, you have to learn the properties. यही सुना था, बहुत रट्टे लगाना पड़ता है. इजी नहीं है एक उसके लिए. सो आपको वर्ड्स ऐसे याद करने पर, लैटिन वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं. व्हाट डज दैट मीन? यू जस्ट हैव टू याद करना है. और मैं तो सारा टाइम यही सोचता रहता था क्यों याद कर रहा है, क्या होगा याद कर. हाँ, तो यू विल सी कि आप लीफ की प्रॉपर्टी बताएंगे कि लीफ इतने टाइप की लीव्स होती है उसके अंदर, वो अच्छा है. लेकिन जब उसका नाम याद करना है कि इस फैमिली का नाम क्या है उसके अंदर, पहले फैमिली का नाम फिर स्पीसीज का नाम, तो पहले प्लांट क्लासिफिकेशन फिर एनिमल क्लासिफिकेशन. उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, मुझसे ये दोनों नहीं हो पाएगा उसके अंदर. तो एट दैट पॉइंट मैंने बायोलॉजी छोड़ दी. अच्छा, ये 11th में ये 11th के अंदर आई थिंक 3-4 महीने के अंदर हो गया था. स्कूल स्टार्ट होने के बाद में मैंने बायोलॉजी छोड़ दी. उस टाइम पे आई वेंट एंड आस्क्ड फॉर कंप्यूटर साइंस एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट सिंस क्योंकि 4-5 महीने निकल गए थे, तो इस साइड कि आपको मुश्किल होगी कंप्यूटर साइंस में, यू टेक एन इजियर सब्जेक्ट. देयर वाज अ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट व्हिच वाज द मोस्ट इजियर सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल आल्सो. मैं उसमें फेल होते बचा था बट तुम लोग इजी बोल रहे हो. नहीं, हमारे लिए वहां पे होता था कि अगर आपको मेडिकल की तैयारी करनी है या आपको नॉन मेडिकल की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, तो आप फिजिकल एजुकेशन ले लो बेसिकली. क्योंकि उसमें आई थिंक 60% प्रैक्टिकल जो वहीं पे होता है, इंटरनल स्कूल में होता है, एंड 30 या 40% आपका पेपर होता था जिसमें रिटर्न करना होता था.
तो वो सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन ले लिया एंड आई कुड नॉट गेट द कंप्यूटर उस टाइम पे एंड देन तो उस टाइम पे आपका रियलाइजेशन था कि अब आप फोकस हो गए कि इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये 11th मिड में समवेयर 11th मिड के अंदर also। अब इंजीनियरिंग में आपको वहां पे उस टाइम पे 3 टाइप के एग्जाम्स काफी फेमस थे, ठीक है। एक आपका IIT हो गया, एक AIEEE हो गया, एक आपका लोकल राजस्थान का इंजीनियरिंग एग्जाम होता है, हाँ। PET आई थिंक सो। तो ये 3 एग्जाम्स हैं जो आपको देनी है। तो अब IIT क्या है नहीं आइडिया उसके अंदर, तो अपने पेपर्स आते हमें हैं। हमेशा लगता था राजस्थान में सबको पता होता है क्योंकि कोटा की वजह से लाइक IIT तो पूरा मतलब तो- राजस्थान एज अ बिग इन्फ्लुएंस तो राजस्थान है बिग इन्फ्लुएंस, वो ट्रू है। हाँ। प्रॉब्लम क्या है कि तो माई टाउन श्रीगंगानगर इज द नॉर्थ मोस्ट ऑफ द राजस्थान। अच्छा तो कोटा एंड मेरे टाउन के बीच में 800 किलोमीटर्स का डिफरेंस है ओके, उसके अंदर। ओके। तो तो अवेयरनेस उतनी नहीं है उसके अंदर also। तो वही था कि अब फिगर आउट करना है ये क्या है, तो आपका क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था, न्यूज़पेपर, ठीक है। तो जैसे ही आपका एग्जाम पीरियड शुरू होता है तो आपके पास में यू हैव न्यूज़पेपर में एड्स आती है, फुल पेजेस ऐड, 3 पेजेस ऐड, आप 16 पेज का न्यूज़पेपर है उसमें 50% एड्स है पेजेस में also। तो वहीं पे आई स्टार्टेड विद द वन ऑफ द टेस्ट सीरीज also। इसकी थी फिटजी की टेस्ट सीरीज थी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज समथिंग करके थी, ठीक है। अब प्रॉब्लम उसके साथ में द टेस्ट सीरीज है तो सेंटर पे होती थी। अब सेंटर आसपास कोई सेंटर नहीं है, द नियरेस्ट सेंटर इज जयपुर विच इज 500 किलोमीटर अवे also, ठीक है। अब दैट मीन्स एन ओवरनाइट जर्नी also। एंड आपके टेस्ट सीरीज में यू हैव सो मेनी टेस्ट, एग्जाम्स हैं, टेस्ट हैं also। लेकिन फिर वो अटेम्प्ट किया also। अच्छा तो you used to travel I used to 500 travel किलोमीटर हाँ, तो वो 2 दिन एग्जाम होते थे, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे Okay. सो। एंड तो फ्राइडे नाइट ट्रैवल करते थे, मॉर्निंग में जाके सैटरडे एग्जाम देते थे, संडे एग्जाम देते थे, संडे नाइट ट्रैवल करके मंडे वापस घर पे आते थे सो। ओके तो वो वाला एक इंटरेस्टिंग फेज था क्योंकि एट दैट उस टाइम पे आपको रियलाइज होता है कि एग्जाम इज दिस इज गोइंग टू बी टफ जर्नी सो इट्स हाँ, वो नॉट जब रैंक आती थी 8,635 और फिर अब देख रहे कि यार यहाँ पे इतना आसान था और वहां पे क्या हो रहा है कि मैं तो टॉपर होता था, ये कहाँ मुझे कहाँ आ गया? 8,600 कुछ कह रहे हैं। उसके अंदर आ गया उसको। तो वो रियलाइजेशन जब हिट किया तो क्या किया, मतलब कुछ अलग से तैयारी करनी शुरू की या क्या? उस रियलाइजेशन पे क्या था कि वहां पे आई थिंक उतना रियलाइजेशन नहीं लिया था कि अच्छा। कि आप क्योंकि एग्जाम है तो यू क्रिएट योर ओन काइंड ऑफ अ बबल, विल से कि ठीक है देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आल्सो, विल हम अभी टाइम है also। तो 12th में के साथ में एग्जाम दिया also। एग्जाम में रैंक तो जेई में आपके 2 होते थे, स्क्रीनिंग और मेन, प्रीलिम और मेन होता था। स्क्रीनिंग आपका ऑब्जेक्टिव होता था, मेंस आपका सब्जेक्टिव होता था उस टाइम पे so। तो प्रीलिम में हो गया फर्स्ट, तो अब लगा कि अब चांस है आपको, आई थिंक 1.5 महीने 2 महीने का 1.5 महीने का शायद पीरियड मिलता था रिजल्ट से नेक्स्ट एग्जाम के बीच में so। देन वी मैंने वहां पे फिर क्रैश कोर्स लेने की सोची। अच्छा अब वही प्रॉब्लम कि आसपास उस टाइम पे एज ए एजुकेशनल हब डेवलप नहीं हुआ था वो एरिया सो। एंड एक और क्या इशू था कि बठिंडा फिर भी डेवलप था, ठीक है, लेकिन बठिंडा आपका थोड़ा सा दूर पड़ता था। दूर एज इन नॉट फ्रॉम डिस्टेंस वाइज, डिस्टेंस आई थिंक 200 किलोमीटर ही है गंगानगर से, लेकिन आपका आप राजस्थान से हो, आपकी फैमिली राजस्थान में है तो वो पंजाब का अलग टच पड़ता है correct, उसके अंदर। तो बठिंडा की जगह जयपुर प्रेफर करते थे उसके अंदर, और वहां पे फैमिली भी थी जयपुर में तो फिर वहां पे ये आपका कोचिंग लिए और नहीं हुआ फर्स्ट ईयर में, नहीं हुआ। एंड देन वी वेंट इनटू कोटा फॉर 13th, so they used to call it 13th batch 13th की 12वीं तक तो आप कर लिए, एक साल आप और 13th ईयर correct. वाला समथिंग so। तो इस टाइम पे how was the family supportive और
वो कह रहे थे कि क्यों एक साल खराब करना है, ये हम सारी सबके साथ में सबके रहता है, साथ सबके साथ रहता है। तो वहां पे इंटरेस्टिंग क्या था कि एयर ट्रिपल में मेरा ठीक रैंक था, मतलब नॉट ग्रेट और समथिंग, आई थिंक अराउंड 6000 रैंक था मेरा एयर ट्रिपल में फर्स्ट ईयर में। लेकिन एज यू सेड कि तो वहां पे उस टाइम पे अपना स्टेट कोटास थे बेसिकली, कि आपका 50% निट जयपुर में यहाँ से फिल होगा, एंड उसके अलावा हर आईआईटी में भी कोटा थे कि राजस्थान की 2 सीट है, 1 सीट है, इस टाइप से। तो इस कोटा की वजह से एडमिशन नहीं मिल रहा था उसको। अब द अदर ऑप्शन विच आई हैड वाज कि यू कैन, आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ और एडमिशन ले लो उसको। प्राइवेट कॉलेज उस टाइप पे थोड़े से कॉस्टली थे, फ्रॉम द एजुकेशन, फीस एक्सपेंसिव, दे यूज्ड टू कॉस्ट 35,000 सेमेस्टर की फीस होती थी। आजकल पता है कितनी होती है? अब तो इंसेन हो गई है, अब तो जेई की भी इंसेन हो गई है, सो आईआईटी की भी। हम तो आईआईटी में जब हम गए थे तो हमारी 7,000-8,000 सेमेस्टर फीस थी, एंड हमारे साल डबल हुई थी फीस। उससे जस्ट पहले, मैं बीएचयू की बात कर रहा हूँ, आईटी बीएचयू की बात कर रहा हूँ, उससे जस्ट पहले बहुत कम थी। एक मिनट, ये आईटी बीएचयू कब हुआ वो थोड़ा सा बता। 13th तो में क्या किया? अब 13th में गए, 13th में एडमिशन लिया, एंड आपका कोटा में स्टे करना, फीस पे करना इज एन एक्सपेंसिव अफेयर, वाज क्वाइट एक्सपेंसिव अफेयर आल्सो। तो फैमिली बहुत सपोर्टिव थी उसमें। एवरीथिंग व्हिच आई कुड डू वाज बिकॉज ऑफ द फैमिली, बिकॉज दे थॉट दैट एक बार पूरा ट्राई करना है उसके अंदर। तो देयर वाज नो, मुझे कभी भी नहीं रियलाइज हुआ कि फाइनेंशियल किसी भी वजह से मैंने कोई डिसीजंस ब्रेक किए एजुकेशन में। तो वो क्लियर था फैमिली का कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, एजुकेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी करना है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो देन कोटा गए, कोटा में रियलाइजेशन हुआ बेसिकली व्हेन यू वेंट टू कोटा। आप तो वहां पे वो उस टाइम पे भी वो मशीन बन गई थी कि अब मैं श्री गंगानगर का टॉपर तो नहीं हूँ। हाँ, पे आके हाँ वो एग्जैक्टली। तो आप वहां पे जब पहुंचते हो तो यू सी बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली जो पढ़ रहे हैं आपके पास में। मैं बंसल क्लासेस में गया था उसके अंदर तो बंसल क्लासेस में डोंट रिकॉल, आई थिंक 30 बैच हैं। आपके 13th के 20 बैच हैं, हर बैच में 80 स्टूडेंट हैं। Huge machinery. Seriously, it's a factory. It's a factory. Exactly. Kota is a factory. And this I am talking about in 2004-5 also. So मैं 12th 2004 में की थी also. Okay. At that time वहाँ पे 2 major players थे। एक आपका बंसल क्लासेस था, दूसरा रेजोनेंस था। अभी भी शायद यही तो है। अब चेंज हुए हैं शायद उसके अंदर वहाँ पे। अब और भी आ गए हैं। तो तो जब ये वहां गए तो भी रियलाइजेशन था, अब आपके जो रैंक्स आ रहे हैं, एंड अब आप स्कूल में भी नहीं हो, तो यू हैव ओनली वन एम टू डू, एंड और यू सी पीपल। तो उस टाइम पे कोई भी कंस्ट्रेन नहीं था, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। तो देयर वर पीपल हु वर जो वहां पे 3 साल से पढ़ रहे हैं उसके अंदर, तो उन्हें 13 ही किए जा रहे हैं। अच्छा, 13 नहीं होता। उसी बैच में है, 13 का बैच है उसके अंदर, अगले साल भी उसी में है, अगले साल भी उसी में है। तो आप एक घर में रह रहे हो, घर में आपके पास में तो सिंस फैक्ट्री हो गया है तो आप एक रूम लेके रह रहे हो उसके अंदर, एंड आपका जो आपका फ्लैट, जो भी आपका घर है, उसमें 10 लोग होंगे बेसिकली, सब एक रूम में, सबका अपना बैकग्राउंड है। कोई 12th में है, कोई 11th में है, कोई 13th में है, कोई रिपीट कर रहा है और तो वो उस टाइम पे रियलाइजेशन हुआ था कि ये दिस इज गोइंग टू बी अ टफ जर्नी। So were you able to stand up to the challenge? मतलब या बहुत मुश्किल लगा कि सांस फूल रहा है? मुश्किल लगा बहुत, इनिशियली बहुत मुश्किल लगा, एंड टाइम भी बहुत कम रहता है क्योंकि आपका सेशन स्टार्ट होता है एंड आपके पास 8-9 महीने का पीरियड होता है पढ़ने के लिए। उसके बाद में यू आर ऑन योर ओन। तो आई हैव सीन, मेरे साथ में कुछ और लोग गए थे, जैसे देन यू ट्राई टू फाइंड आउट कि आपकी सिटी से कौन गया है, सम काइंड ऑफ कनेक्ट बिल्ड करने की, एंड कुछ लोग वापस आ गए
who could not face the pressure so basically तो वो थोड़ा सा tricky situation थी also and then we moved तो वो वाला phase थोड़ा सा अलग phase था life का Yeah. उसके अंदर Even if I reflect, I would not want to relive that Relive time. that, Like yes. that struggle is too quite much. torturous. Yes, it is to be too honest. एंड काफी कुछ रियलाइज एग्जाम्स पीरियड आपका बहुत ज्यादा लगता है कि थोड़ा सा रैंडम भी है उसके अंदर कि यू डू नॉट नो कि आपके पास में पीरियड है उस पीरियड में आप कितना करोगे क्या करोगे उसो और वो दिन कैसा जाता है सो दैट बिकम्स वेरी Yeah. डिजास्टरस और ऊपर से प्रेशर वो भी होता है कि पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा बहुत इन्वेस्ट किया invest किया एंड है। दिस इज माय ओनली अपॉर्चुनिटी opportunity, yes. सो देयर इज नो प्लान बी exactly so this one of the thing which I read about it and I even now tend to believe is कि most of the successful things that happen does not have plan B also so they know that this is the only way you have to go Mhm. also so you cannot rely on the other path also but वो जर्नी अच्छी नहीं है उसके लिए वो आपका पीरियड की वो जर्नी है वो उतनी सही नहीं है True. So after that 8-9 months of quota, you made it to ITBHU. yes और वहाँ पे फिर कौन सी ब्रांच लिया, कैसे ऑप्शंस क्या थी उस टाइम पे ITBHU के अलावा? तो उस टाइम पे भी यही हुआ था कि जब एग्जाम का रिजल्ट आया एंड आई वाज डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम आल्सो आई स्टिल रिमेंबर द नाइट तो आई क्राइड अ लॉट आल्सो दैट नाइट आल्सो बिकॉज़ आप जब आप उस एरिया में स्टडी कर रहे होते हो यू फील दैट you want to get into something also and when you look at your rank so I got around 21900 rank 2900 2901 or something exam मेरा ऐसा नहीं हुआ था कि I would have gotten that thing but you still feel disappointed yeah. also at that point also And 2900 amongst like lakhs and lakhs of candidates who appear yes is an achievement, but the irony is that you're still disappointed also, achieving, after so- achieving that thing also though at that point you have choices so you looked at previous साल की merit list and figure out कि तो I had option of choosing either रुड़की में with metallurgy and similar branches also उस साल कानपुर में एक इंटरेस्टिंग नया कोर्स स्टार्ट हुआ था इट वाज कॉल्ड MSc in economics also basically बट वो पहला साल था उसका उस कोर्स का तो that was an so I was inclining toward that but लेकिन that was a new thing also इसी टाइम पे मैंने I also gave the DCE का एग्जाम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एग्जाम also and DCE has very good mechanical branch so when you read about it तो DCE is famous for their mechanical engineering at least at that time Oh, yes. also Yeah. तो mechanical में I got some interest also Okay. and I was able to get mechanical in BHU Okay. तो वहां पे मेरा वो था कि डीसी के थ्रू मैकेनिकल मैंने चूज किया इन बीएचयू रियलिस्टिकली आई वुड नॉट हैव चोजन बीएचयू एनी फॉर एनी अदर ब्रांचेस एट दैट टाइम आल्सो Okay. तो वो थोड़ा सा मुझे डायरेक्शन डीसी का मैकेनिकल के थ्रू Okay. मिला तो अभी तक कंप्यूटर्स के साथ ऐसी कोई एफिनिटी नहीं थी, बस इंजीनियर बनना था और इंजीनियरिंग में बेस्ट ऑप्शन उस टाइम पे मैकेनिकल दिखी। तो कंप्यूटर का उस टाइम पे मेरे पास में ऑप्शन भी नहीं था विद माय Option रैंक नहीं था, आल्सो बट दिमाग में था कि बनना वही है, बट ठीक है ये मैं अब जो आपके पास में लेगा। जो ऑप्शन ओपन अवेलेबल है यू चूज फ्रॉम देम आल्सो ठीक है तो आई मेट अ पर्सन हु वाज इन डूइंग रुड़की में मेटलर्जी आल्सो सिमिलर रैंक एंड आई थिंक 2 years here तो उसका पर्सपेक्टिव था कि एवरीबॉडी विल गो इनटू आईटी ओनली अच्छा तो चूज एनी ब्रांच बेसिकली तो कम टू रुड़की and choose this out also college matters than the branch Sure. also basically at that Sure. time also but I was more inclined कि नहीं मुझे जो मैं ब्रांच पढ़ रहा हूँ मुझे उस ब्रांच में इंटरेस्ट होना चाहिए एटलीस्ट also तो 4 साल में जो पढ़ूंगा वो मुझे थोड़ा सा which is a fair thing and हाँ नॉट मोर अबाउट कि वो उसके बाद क्या होगा इट्स मोर लाइक कि मैं 4 साल एटलीस्ट कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना चाहता हूँ तो फिर चूज द मैकेनिकल so you started with mechanical I started with mechanical first year was everybody क्योंकि सब बहुत पढ़ के आए थे उसके अंदर तो पहले साल loosen up बहुत होते हो। हाँ बहुत रिलैक्स किया हाँ। एंड फर्स्ट ईयर was a common subject for all engineers Correct. also engineering में हाँ।
So there was no specific mechanical or any branch specific thing that happens also. And fortunately, I got decent marks in first year. BHU was very lenient in branch change also. Oh, So out of other IITs, BHU में सबसे ज़्यादा branch changes होती थी. I have no idea about that also. And branches depend on the कि आपकी branch की strength क्या है. Of 10% of that people will be able to change the branch. Some things aligned and I was able to get computer. okay. Again the last guy in computer. तो ब्रांच में BHU में ब्रांच फर्स्ट रैंकर, तो वहां पर रैंकिंग ऐसी होती थी, फर्स्ट रैंकर इज द आपका जेई के रैंकिंग के बेसिस पे होती थी, जो उसने पहला सीट लिया Got it. तो दैट वाज कॉल्ड खोलू, क्योंकि उसने ब्रांच को ओपन किया है. सो एंड द लास्ट पर्सन इज यूज्ड टू कॉल ढक्कन, क्योंकि वो लास्ट पर्सन है जिससे ब्रांच बंद हो गई है उसके अंदर. तो आई वाज ढक्कन ऑफ कंप्यूटर साइंस. तो माय rank was my roll number was somewhat 41 or so something. Okay. So, Interesting. so incidentally I got the computer. Got it. और उसके बाद 4 साल you studied. So thank you for sharing your story till this time, Atul. Very interesting, very inspiring. Next episode में हम मिलते हैं और हम बात करेंगे कि how did you enter into the professional world. हम placements के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आपकी प्रोफेशनल जर्नी गूगल तक पहुंचने की. So see you guys in the next episode.